عدالتوں سے بھاگا ہوا ایک مفرور شخص اب دوبارہ سیدھا آ کر پاکستان کے اقتدار کے ایوانوں میں ہمارا اب حکمران بن گیا ہے۔ آج کوئی بھی عدالت جو رات کو 12 بجے تک کھلتی تھی، آج کسی بھی عدالت کا جو باہر لگا ہوا ترازو ہے اس میں کوئی جنبش نہیں آئی۔ پاکستان کے کسی عدالت نے، پاکستان کے کسی ادارے نے، پاکستان کی پارلیمنٹ میں کوئی آواز اس حوالے سے نہیں اٹھائی گئی کہ ایک ایسا مفرور کیا وہ اتنا ناگزیر ہو چکا ہے پاکستان کی معیشت کو چلانے کے لیے۔ بہرحال یہ کلیکٹیو شیم کا معاملہ ہے، بہت شرم کا معاملہ ہے۔ ہمیں تو بہت شرمندگی فیل ہو رہی ہے بینگ پاکستانی شہری۔ آپ کے احساس کو بھی میں جگانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پاکستان میں سب سے بڑی سیٹ پر بیٹھا ہوا ڈاکٹر جو ہے، جب وہ کسی مریض کو آنے کا اشارہ کرتا ہے تو وہ صحت یاب ہو کر دندناتا ہوا پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ پاکستان کے ایئر فورس کے جہاز کے اوپر واپس لینڈ کرتے ہیں اور ہمارے اوپر حکمرانی کرتے ہیں۔ میں احمد ابوبکر ہوں، آپ سوشل میڈیا کے اوپر میرا یوٹیوب اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کی پالیٹکس کے اوپر ہم گاہے بگاہے بات کرتے رہتے ہیں، مگر یہ جو سیلاب کی ایک آفت تھی، کچھ دنوں کے لیے ہم نے اس سلسلے کو مؤخر کیا تھا اور سیلاب کو بھرپور کوریج دی تھی۔ اس وقت جو ہمارے پیش نظر معاملہ ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کی واپسی ہے۔ یہ در حقیقت خان بامقابلہ ان قوتوں کے بن گیا ہے جنہوں نے عمران خان صاحب کو اقتدار سے نکالا تھا، اور اب واضح ہو گیا ہے کہ پاکستان میں 3 اپریل کیوں ہوا تھا اور 9 اپریل کیوں ہوا تھا، کیوں عدالتیں کھلی تھیں اور کیوں عمران خان صاحب کو گھر میں بھیجا گیا تھا۔ تو اسحاق ڈار صاحب کی جو واپسی ہے اس میں بہت دلچسپ حقائق ہیں۔ سب سے بڑا تو یہ کہ 5 سال بعد وہ واپس آئے۔ وہ مفرور تھے، ابسکنڈر تھے، اشتہاری تھے۔ اب وہ پاکستان کے منتخب وزیر اعظم جو ہیں ان کے جہاز میں وہ واپس آئے، اسی طرح سے وہ ان کے جہاز میں 5 سال پہلے واپس گئے تھے لندن۔ اب واپس آئے تو سیدھا آج انہوں نے سینٹ میں اپنی سیٹ کا حلف اٹھایا، اور اب وہ پاکستان کے وزیر خزانہ کا حلف بھی آج یا کل تک اٹھا لیں گے۔ تو ہم ایک تو اس کا تجزیہ کریں گے ساری صورتحال کے اوپر۔ دوسرا جو بڑا مدعا ہمارے پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ کل گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو خطاب ہے اس کو لے کر جو تنقید ہو رہی ہے اس میں، اور پھر جس طرح سے اسحاق ڈار صاحب پاکستان ایئر فورس کے جہاز میں واپس آئے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم کے شانہ بشانہ، اس پر جو تنقید ہوئی ہے اس میں ایک چیز مسنگ ہے، ہم اس کا جائزہ بھی لیں گے۔ اور اس کے بعد پھر خان صاحب کے حوالے سے ایک بات ہے کہ ان کی جو تحریک ہے اب اس نے نیا موڑ کس طرح سے مڑنا ہے، اور لانگ مارچ کا مستقبل کیا ہے، اور کن تاریخوں میں دوبارہ تحریک انصاف نے اس حکومت پر دباؤ بڑھانا ہے اور خان صاحب نے لانگ مارچ کی کال دینی ہے۔ اور اس سب سے بھی بڑھ کر جو ڈیٹا لیکس ہیں، جو ڈارک ویب کے اوپر اب پاکستانی آفیشلز کا ڈیٹا پڑا ہے، پاکستان کی جو سب سے بڑا عہدہ ہے سویلین، اس کے دفتر کو لے کر وہاں پر جو ڈسکشن ہوتی ہے پاکستان کی قومتی سلامتی کو لے کر اور دیگر معاملات کو لے کر پاکستان کے اداروں کے، وہ اب ہیکرز کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ جو ایک کلیکٹیو شیم ہے، شرمندگی ہے اس قوم کے لیے، 220 ملین لوگوں کے لیے، اس کا جو اب آپ کہہ لیں کہ اس کا جو کلائمیکس ہوگا، اب انہوں نے دھمکی دے دی ہے کہ 30 سپٹمبر کو بروز جمعہ وہ ساری تفصیلات اب عام کر دیں گے، اور پھر وہ تفصیلات ہوں گی، اور پھر ہم جیسے پاکستانی ہوں گے جو شرم سے جن کا منہ نیچے ہوگا کہ پاکستان کا سب سے بڑا سویلین آفس جس کی سیکیورٹی اور جس کی پرائیویسی ایکچولی بریچ کی گئی ہے۔ ہم ان تمام باتوں کا جائزہ لیں گے۔ میرے یوٹیوب اور فیس بک کو آپ سبسکرائب کر لیجئے، اسے لائک اور شیئر بھی کیجئے۔ سب سے پہلے ہم جائزہ لیتے ہیں اسحاق ڈار صاحب کی جو واپسی ہے، اس کی نوبت کیوں آئی ہے۔ ظاہر ہے نئی حکومت سے ملک نہیں چل رہا، معیشت بالکل نہیں چل رہی۔ مفتاح اسماعیل کے بارے میں تو انہی آڈیو لیکس میں کھل کر آ گیا ہے کہ کس طرح سے مریم نواز صاحبہ انہیں بے وقوف قرار دے رہی ہیں، اور شہباز شریف صاحب سے مخاطب ہیں کہ اسے تو کوئی علم ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کرتا پھر رہا ہے۔ تو در حقیقت پاکستان میں جو اس وقت حکمران ہیں وہ وہی ہیں جو 50 روپے کے بیان حلفی کے اوپر جو باہر لندن گئے تھے اپنا علاج کرانے، وہی موجودہ خمینی صاحب پی ایم ایل این کے میاں نواز شریف صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، وہ ملک کو چلا رہے ہیں۔ ان کی منشا اور مرضی ہے کہ اس وقت اسحاق ڈار صاحب جو ہیں پاکستان کے وزیر اعظم کے کندھے پر سوار ہو کے واپس پاکستان جائیں اور پاکستان کی معیشت کو اب دوبارہ وہی سے چلائیں جہاں سے ان کی دانش میں وہ چھوڑ کے گئے تھے۔ لیکن ایک ایسی فنکشنل ڈیموکریسی، ایک ایسا ملک جہاں عدالتیں بظاہر کام کر رہی ہیں، جہاں پارلیمنٹ بظاہر کام کر رہی ہے، اور عدالتوں سے بھاگا ہوا ایک مفرور شخص اب دوبارہ سیدھا آ کر پاکستان کے اقتدار کے ایوانوں میں ہمارا اب حکمران بن گیا ہے۔
220 मिलियन लोगों की जो किटी है, उनका जो खजाना है, उसका जो अब हमने रखवाला रखा है, वो अदालतों से मफरूर था। अब उसने एहतसाब अदालत भी आज सुबह गया है, आज उसने सेनेटर का हलफ भी उठा लिया है। और आज कोई भी अदालत जो रात को 12-12 बजे तक खुलती थी, आज किसी भी अदालत का जो बाहर लगा हुआ तराजू है, उसमें कोई जुम्बिश नहीं आई। पाकिस्तान के किसी अदालत ने, पाकिस्तान के किसी इदारे ने, पाकिस्तान के पार्लियामेंट में कोई आवाज इस हवाले से नहीं उठाई गई कि एक ऐसा मफरूर, क्या वो इतना नागुज़ीर हो चुका है पाकिस्तान की मईशत को चलाने के लिए। बहरहाल ये कलेक्टिव शेम का मामला है, ये एक असूल की बात है, लेकिन यही नून लीग का फलसफा है, यही इस मुल्क का निज़ाम है, और यही इस मुल्क का निज़ाम नंगा हुआ है। दर हकीकत ये उन लोगों के, ये जो सारा अमल है, उन लोगों के जो बिहाइंड द सीन है, जो असल ताकतवर हैं। पाकिस्तान में दर हकीकत बादशाहत है, जमहूरियत तो एक नीम जमहूरी सा निज़ाम है। असल हाकिम जो हैं, जब वो चाहते हैं, यहां पाकिस्तान की अदालतों से 50 रुपए के बयान हल्फी के ऊपर लोगों को बाहर लेके जाते हैं। तो ये जो 220 मिलियन लोग हैं, कीड़े मकोड़े हैं, ये दर हकीकत पैदा इसीलिए हुए हैं कि इनके फैसले बंद कमरों में, बंद गलियों में और ड्राइंग रूम्स में किए जाएं, और इस तरह के लोग आकर हमारे हाकिम बने। कभी अमेरिका और वाशिंगटन से उठकर आते हैं, कभी लंदन से उठकर आते हैं, और कभी पहले जेलों में होते हैं, और अगले दिन किसी एक मुबहम हुक्म के नतीजे में ये लोग मुल्क से बाहर भी होते हैं, हमारे हुक्मरान भी बन जाते हैं। ये बहुत शर्म का मामला है। हमें तो बहुत शर्मिंदगी फील हो रही है बीइंग पाकिस्तानी शहरी। आपके एहसास को भी मैं जगाने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसे निज़ाम, ऐसी जमहूरी गला सड़ा बदबूदार निज़ाम, उसके खिलाफ हमें एक मुस्बत और तवाना आवाज बनना है, ताकि कल को ये दोबारा नौबत ना आए। इस हवाले से जो आज खान साहब ने पेशावर में कहा है, उन्होंने इसे NRO 2 कहा है। उन्होंने इसे कहा है कि दोबारा दूसरी दफा डील कर ली है शरीफ खानदान ने। लाजमी तौर पर ये सारे मामला डील के बगैर मुमकिन ही नहीं है। कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान का एक ऐसा ताकतवर तरीन इदारा और उसकी एक ताकतवर तरीन शख्सियत, जो 50-50 जर्नलिस्टों के सामने बैठकर कहते रहे हों कि पाकिस्तान की मईशत को इसहाक डार ने डबोया है, आज वही इसहाक डार एक मसीहा और निजात दहिंदा बनकर पाकिस्तानी मईशत के लिए आज इस्लामाबाद में मौजूद हैं, और कानून की गिरफ्त से बहुत ऊपर ऊंचे, और उनके लिए 2 कानून हैं। तो खान साहब और उनकी जो तहरीक है, अब उसके लिए ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है। उन्हें अब आगे बढ़ना है, उन्हें अपनी लॉन्ग मार्च की कॉल देनी है, क्योंकि उनसे भी कुछ लोग बिहाइंड द सीन वादे कर रहे हैं कि 15 दिनों में इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा, आप लॉन्ग मार्च का ऐलान कीजिए, लाखों लोगों को आप इस्लामाबाद ले आए। अगर वो आ जाएंगे तो फिर उनका दबाव भी, वो जो लोग दबाव डालते होते हैं पाकिस्तान में मुंतखब हुकूमतों के ऊपर, वो दबाव भी उनके साथ हो जाएगा और इवेंचुअली इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ से कुछ और चालें भी चली जा रही हैं। तो ये वाज़े तौर पर मामलात बता रहे हैं कि जो ताकतवर लोग हैं, उनके अंदर भी डिवाइड है, और उनकी अपनी प्रायोरिटीज हैं, और उसके मुताबिक वो पॉलिटिकल मोहरों को आगे और पीछे कर रहे हैं। तो ये शतरंज की ये जो बिसात है, ये बिछी हुई है, इसमें आगे उसने जाना है, विन उसने करना है, आगे उसने बढ़ना है। जो अपनी चालों को इस बिसात के ऊपर बेहतर अंदाज में खेलेगा, फिर असल फातेह वही होगा। इस सारे मामले पे हम नजर रखे हुए हैं। लेकिन कल जो गवर्नमेंट कॉलेज में खिताब हुआ है, उस पर बहुत तनकीद हो रही है ट्विटर के ऊपर। बाकी लोग भी कर रहे हैं, PMLN भी कर रही है, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने भी की है। लेकिन मुझे याद है कि लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी में शहबाज शरीफ साहब बतौर वजीर आला थे। दुनिया टीवी के ऊपर उनका एक प्रोग्राम था कामरान शाइस का, मैंने उसे प्रोड्यूस किया था। वो एक आईनी ओहदेदार थे उस वक्त, और मुल्क इलेक्शन में जा रहा था उस वक्त। डिफाइनिंग मोमेंट था, इलेक्शन कैंपेन थी, और उसमें उन्होंने आकर खिताब किया था, और वो पॉलिटिकल गुफ्तगू की थी उन्होंने, उस पर तो कोई बात नहीं हुई थी। एंड इलेक्शन के दिनों में उनकी जब हुकूमत खत्म हो रही थी, उससे पहले हमने UIT लाहौर में उनका एक प्रोग्राम किया था। हजारों स्टूडेंट्स के सामने उन्होंने पॉलिटिकल तकरीर की थी, उस पर तो किसी ने बात नहीं की थी। दर हकीकत ये जो तालीमी इदारे होते हैं, मेच्योर तालीमी इदारे, बड़ी यूनिवर्सिटीज, जामियात, उनमें अगर तलबा पॉलिटिक्स के ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं सुनेंगे, नहीं करेंगे, वहां मुकालमा नहीं होगा, तो ऐसे तालीमी इदारों का कोई मकसद नहीं है। क्योंकि यही पढ़ी लिखी हमारी नस्ल होती है जिसने कल को पॉलिटिक्स में आना है। अगर हम चाहते हैं यहां कोई सियासी मुदाखलत ना हो, तो फिर पाकिस्तानी सियासत में ये जो पढ़ा लिखा और नई जनरेशन का नया खून है, फिर ये पाकिस्तानी सियासत में नहीं आएगा। और 80 की दिहाई से
बदकिस्मती से पाकिस्तान के इक़्तिदार के ऐवानों में ऐसे नौजवान नहीं हैं, ढूंढे से नहीं मिलते। आप उंगलियों पर 2-4 लोगों को गिन सकते हैं जो अमलन आप सियासत से रिटायर हो चुके हैं। कितने जावेद हाशमी हैं जो हमारी सियासत में है, कितने लियाकत बलोच हैं, कितने जाहिद खान हैं जो हमारी पॉलिटिक्स में हैं? नहीं है ना। क्योंकि उसकी वजह यह है कि 1980 के बाद, ज़ियाउल हक के रिजीम के बाद और उसके दौरान ही पाकिस्तान में ये जो एक सियासी अमल है तालीमी इदारों के अंदर, इस पर पाबंदी है। तो ये एक बड़ी, इसमें मुझे उन जर्नलिस्टों की तरफ से, तजिया नगारों की तरफ से मुझे बड़ा डबल स्टैंडर्ड मिला है कि पाकिस्तान का एक पॉपुलर सियासतदान, साबिक वजीर आजम, अगर गवर्नमेंट कॉलेज में खिताब नहीं कर सकता तो फिर कौन कर सकता है। बहरहाल ये मुनाफकत का एक सिलसिला है जो चल रहा है, हमें देखने और सुनने को मिल रहा है। तो ये हमारे सामने है। इसके बाद हमने लॉन्ग मार्च के हवाले से जो एक फाइनल प्लान है खान साहब का, वो यकीनन अगले 1 या 2 हफ्तों में उसका ऐलान हो जाएगा और उसके बाद फिर केपी और पंजाब से जो यलगार होगी, शायद वो वफाकी हुकूमत के लिए रोकना नामुमकिन हो जाए। लेकिन खान साहब की तहरीक फिलहाल तब हो सकती है जब नई हुकूमत की मुआशी पॉलिसियां काम करना शुरू कर दें। अगर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत एक कदम भी आगे ना बढ़ सकी तो इस हुकूमत के खत्म होने का और किसी भी वक्त इलेक्शन का जो चांस है वो बिल्कुल ये ऑप्शन है और ये मौजूद रहेगा। और सबसे बढ़कर अब एक जो परेशानी वाली खबर है वो डाटा लीक्स है। जो हैकर्स हैं, अब उन्होंने जो 100 GB से भी जायद का जो डाटा है उसको 30 सितंबर को जुमा वाले दिन लीक करने का ऐलान किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे इंटरव्यू करने की कोशिश ना की जाए, हमसे राब्ता ना किया जाए और हम वसीतर मुफाद में जो है ये डाटा अब हम लीक करेंगे ताकि पाकिस्तानियों को पता लग सके कि इक़्तिदार के ऐवानों में किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, मफादात का टकराव होता है और किस तरह से महलाती साजिशें होती हैं। हम इसके इंतजार में हैं। लेकिन सबसे बढ़कर शर्मिंदगी की बात यह है कि यह पाकिस्तान का आला सिविलियन तरीन सीट और ऑफिस है जिसकी सिक्योरिटी ब्रीच हुए, जहां ट्रस्ट ब्रीच हुआ है और पाकिस्तानियों के मामला जो डिस्कस होते हैं नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, न्यूक्लियर आर्सनल्स को लेकर, कश्मीर को लेकर, हिंदुस्तान को लेकर, बीजिंग और वाशिंगटन को लेकर, ये तमाम मामला और इनके साथ सबसे बढ़कर जो चचा और भतीजी की जो कन्वर्सेशन है जो कई हवालों से बहुत शेम है, शर्मिंदगी का मामला है। पाकिस्तान में पॉलिसीज को लेकर, पेट्रोल की कीमतों को लेकर, मिफ्ता इस्माइल की परफॉर्मेंस को लेकर, सेहत कार्ड को लेकर और फिर जो इलेक्शन कमीशन जो फैसले कर रहा है पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों को लेकर, उस हवाले से ये हुकूमत और चचा और भतीजी दोनों इन मामलात में साजिशें करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। तो ये एक बहुत शर्मनाक बात है कि पाकिस्तान का सबसे आला तरीन सिविलियन जो ऑफिस है, प्राइम मिनिस्टर का जो एक कुर्सी है, चेयर है, वो कितनी बुरी तरह से पाकिस्तान के सियासी मामलात में कंप्रोमाइज्ड है और ये कलेक्टिव शेम है हम सब के लिए। इन तमाम मामलात के ऊपर हम नजर रखे हुए हैं। मेरे यूट्यूब और फेसबुक को आप देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।